Hello everyone, welcome back to the class. So, in this part of the video, we'll be discussing set 3 of RMS paper 2016. Okay? The rest of the sets I have discussed in previous videos. If you have not visited those videos, kindly visit them. Those videos are really helpful for you because in that I have discussed which type of questions had been asked in your exam or what type of paper will be there. People will get to know through those videos. Also, if you have not joined live classes or RIMC, RMS and AISSEE exam preparation, kindly join them. In order to know more about the classes, do visit the website. Here is the link www.geometryschool.in. For these live classes, the school has started Target RMS 2022 Champions Batch. In this batch, you'll be getting your daily live classes till your exam is there. You'll be having mock test, current affairs session, and also the live test to check how you people are performing. If you have not visited the batch or if you have not enrolled, go and visit the website. You'll find the batch and the information there, and kindly enroll yourself for making you stronger for the exam. So, what we'll be discussing today, we'll be discussing part 3 of 2016 paper. This is for class 6. This will be your question paper. 50 questions. 50 questions, 1 mark each. So, your set will be of 50 marks. Moving on to question number 1, that is 183. We are on question number 183. The sum of two numbers is 40 and their difference is 4. Find the ratio of these two numbers. Okay. Let the two numbers be. Okay. First take the screenshot. Take the screenshot. Come on everyone. Take the screenshot quickly. The sum of two numbers is 40 and their difference is 4. Find the ratio of these two numbers. Okay. Let the two numbers be. We are on question number 183. Let x and y be two numbers. Okay. आपको बोला है sum of the two numbers is 40 and their difference is 4. You need to calculate the ratio. What you'll do, you'll add them up. ये cancel out हो गया. 44, x comes out to be 22. If x is 22 तो y कितना आएगा, यहाँ से देख लो. 22 plus y is 40. Y comes out to be 18, right? So ratio will be, therefore your ratio will be 22 upon 18 to 1 to 9. 11 is to 9 will be your answer. What will be your answer? It's 11 is to 9 here. Moving on to question number 184. You have to simplify 16 divided by 4 divided by 4. Okay. Question 184. You have to simplify this 16 divided by 4 and this whole divided by 4. तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू BODMAS. ये हो गया ब्रैकेट. 16 divided by 4 is 4 divided by 4. What will get? 1. So this will be your answer. Mark your answer here. This will be your answer. Is that okay? Moving on to question number 185. Manoj eats 8 bananas in the morning, 5 in the afternoon and 2 in the evening. How many dozens of bananas does he eat? देखो यहाँ पे बी केयरफुल. उसने पूछा है हाउ मेनी डजन्स. ठीक है.
हाउ मैनी बनानाज नहीं पूछा, उसने बोला है हाउ मैनी डजन्स ऑफ बनानाज डज ही ईट इन अ डे, मतलब कि उसने एक दिन में कितने डजन बनाना खाए हैं, ठीक है। 185। मॉर्निंग में उसने खाए 8, आफ्टरनून में उसने खाए 5 और इवनिंग में उसने खाए 2, तो टोटल कितने बनानास खाए उसने एक दिन में? टोटल बनानास इन अ डे, टोटल बनानास ईटन इन अ डे, सबको ऐड कर दो। 8 + 5 + 2, 8 5 13 14 15 बनानास खाए हैं उसने एक दिन में। हमें इसको डजन में कैलकुलेट करना है, किस में करना है? डजन में। यू पीपल नो 12 बनानास, 12 बनानास is equals to 1 dozen. 1 banana is equals to 1/12 dozens, and 15 bananas is equals to 1/12 into 15, 3 5 3 4, that means 4 1 this much of dozen. So this will be, और इतना डजन बनानास उसने, it's 4 sorry 1/4, ठीक है। So your answer will be 4 1/4, this will be your answer, okay। Moving on to question number 166. This is your question 186. The base and height of a triangle is 8 and 10 respectively. Find its area. Okay. 186. Base is given as 8 meters, centimeters, and height is given as 10 centimeters, right? You need to calculate the area. Normal triangle का area कितना होता है? Half base into height. What is the base? 8. What is the height? 10. 2 1 4. What is the area? 40 centimeter square is the area. Easy था, direct formula put करना है. So your answer will be 40 centimeter square. This will be your answer. Okay. If you have any doubt, let me know in the comment section below. Please be regular with your practice. Now moving on to next question number 187. A man travels from A to B at the rate of 20 km per hour and from B to A at the rate of 30 km per hour. ठीक है. What you need to find out? What is the average speed for the whole journey? You need to find the average speed. We are on question number 187. Speeds क्या क्या दे रखी हैं? 20 km per hour and 30 km per hour. ये है ना? ये आपकी स्पीड्स हो गई, ठीक है। 20 km per hour एंड 30 km per hour, राइट। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड व्हाट इज द फॉर्मूला? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। अब यहाँ पे देखो, टोटल टाइम आपको 20 km per hour दिया है और 30 km per hour दिया है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना गिवन है? 2 hours हो गए। अब हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस आएगा हमारा 20 + 30 इज इक्वल्स टू 50 km। नाउ लुक हियर, अब आप क्या बोलोगे कि मैम ये 20 + 30 तो स्पीड है, तो डिस्टेंस कैसे हो जाएगा? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। स्पीड दी हुई थी 20 km per hour, मतलब एक, दैट मीन्स 1 hour में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 20 km। दिस इज व्हाट द स्पीड मीन्स।
सिमिलरली उसने बोला 30 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 1 आवर में वो कितना कवर कर रहा है, 30 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या बन गया, डिस्टेंस बन गया, टोटल डिस्टेंस। अब हम यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर देंगे, टोटल डिस्टेंस 50, टोटल टाइम 2 आवर्स, क्योंकि एक बार उसने 20 कवर किया 1 घंटे में और 1 घंटे में उसने नेक्स्ट घंटे में क्या कवर किया, 30। सो टोटल टाइम विल बी 2, दैट मीन्स योर आंसर विल बी 25 किलोमीटर per hour will be your answer. This will be your average speed, right? 25 kilometer per hour. Okay. Moving on to next question. Find the cube root of 729, a to the power 9 and b to the power 6. Okay. You need to find the cube root of we are on question number 188. 729 a to the power 9 b to the power 6, इसका आपने क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट मतलब क्या होता है, दैट मीन्स 1/3 पावर निकालनी है, राइट। ओके, तो 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। इफ यू फाइंड आउट द क्यूब रूट, 729 किसका क्यूब होता है, 9। यू कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ टेकिंग द फैक्टर्स, 9 9 81 एंड 81 9 इज 729। तो 729 9 का क्यूब आ गया, ठीक है। तो 729 को हमने चेंज कर दिया 9 में। अब आपको a टू द पावर 9, तो यहाँ पे कितना रहा होगा, हमें निकालना है आपको a टू द 9 की पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, ये जो इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, मतलब इसकी 1/3 पावर निकालनी है। तो ये क्या आ जाए, a की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यू नो a टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर mn। व्हेन पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो वही हमने यहाँ पे किया है। अब आपको क्या करना है, आपको b का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट मतलब b की पावर दिस, तो b कितना आएगा, 3 1 3 2, b कितना निकल के आएगा, स्क्वायर, तो b कितना निकल के आएगा, स्क्वायर। देयरफॉर हमारा आंसर विल बी 9a पावर क्यूब b स्क्वायर। योर आंसर विल बी this one, 9a to the power cube b square. This will be your answer. Okay, डाउट होगा तो कमेंट का सेक्शन में बताना, I'll make it clear to you in the next video. बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया। I'm explaining it once again. Just see, 729 a to the power 9 and b to the power 6 था। For your benefit, क्योंकि स्पीडी अगर कैलकुलेशन आपको करनी है, so just remember the cubes. अभी जस्ट रिमेंबर द क्यूब्स फॉर द टाइम बीइंग, 1 to 30 तक क्यूब्स आप याद रखो, ठीक है, मोर देन इनफ होगा 1 to 30 तक। उससे क्या होगा कि 720, क्योंकि मुझे 1 to 30 का क्यूब्स याद हैं, तो 729 जैसे ही आया मुझे पता चल गया कि ये 9 का क्यूब है। सो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, 9। ओके, क्या मेंशन किया मैंने डायरेक्टली यहाँ पे, 9, 729 का क्यूब। फिर मुझे क्यूब रूट निकालनी थी, तो a टू द पावर 9 गिवन है। क्यूब रूट का मतलब होता है कि हमें क्या मेंशन करना है, पावर 1/3, है ना, हमें क्या डालना है, पावर 1/3 डालनी है। दिस इज व्हाट क्यूब रूट मीन्स। तो 1/3 और इंडिसेस का रूल हमें क्या कहता है, जब पावर की पावर होती है तो दोनों पावर्स क्या होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो वही मैंने ये किया, पावर की पावर को क्या किया, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या है आपका a क्यूब। सिमिलरली इसमें क्या, पावर की पावर मल्टीप्लाई, 3 1 3 2, b क्या निकल के आया, b स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 189। A batch of bottles was packed in 25 boxes with 12 boxes in each box। ठीक है, 25 आपके पास टोटल बॉक्सेस थे और एक बॉक्स में 12 बॉटल्स आएंगी। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, पहले हमने 12 बॉटल्स पैक करी थी एक बॉक्स में, और अब हम लोग 20 बॉटल्स पैक कर रहे हैं एक बॉक्स में, ठीक है। हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, कितने बॉक्सेस फिल होंगे अगर हम एक बॉक्स में 20 बॉटल्स फिल करते हैं। हाँ यस, टेक द स्क्रीनशॉट।
ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट एवरीवन। टेक इट क्विकली। आ गया, चलो मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट। क्वेश्चन 189, राइट। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, टोटल बॉक्सेस हमारे पास कितने थे? टोटल बॉक्सेस हमारे पास 25 थे, राइट। एक बॉक्स में कितनी बॉटल पैक हो रही थी? 12 बॉटल्स पैक हो रही थी, ठीक है। इफ सम, अगर हमें 25 बॉक्स ही, पहले हमने 25 बॉक्स को कैसे पैक किया? जब हमने एक बॉक्स में 12 बॉटल्स डाली। अब हमें उन्हें 25 बॉक्स को पैक करना है कैसे? जब हम एक बॉक्स में 20 बॉटल्स डालेंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, कितने बॉक्सेस भरे जाएंगे? पहले तो 25 बॉक्स भरे गए, अब कितने भरे जाएंगे? ठीक है, सो व्हाट यू डू, जब एक बॉक्स में 12 बॉटल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स आप निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स, भाई एक बॉक्स में 12 हैं तो 25 बॉक्सेस में कितनी बॉटल्स होंगी? 250 प्लस 50 मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट 300। ये आएंगी 300 बॉटल्स, ठीक है। सो हमने क्या किया, what we need to find out, you need to find out the boxes, right? What number of boxes? So हमें क्या बोला था? 20 बॉट, therefore ये जो 20 बॉटल्स थी, मतलब ये 300 बॉटल्स हमें कितने बॉक्सेस में पैक करनी पड़ेंगी अगर हम 20 वाला कैलकुलेशन लेते हैं? तो 20 बॉटल्स इन वन बॉक्स, तो 20 बॉटल्स आई वन बॉक्स में, तो वन बॉटल कितने बॉक्स में आएगी? यू नीड टू अप्लाई द यूनिटरी मेथड हियर, 1/20। तो आपकी 300 बॉटल्स जो हमारे पास अवेलेबल है कितने बॉक्सेस में आएंगे? 1/20 इंटू 300, कैंसिल आउट द जीरोस, 2 1 2 15, योर आंसर विल बी 15 बॉक्सेस। ओके, दिस विल बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 189। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अ बैग ऑफ चॉकलेट can be shared equally among 4, 5, 6 children with no leftover. What is the least number of chocolates in the bag? You need to calculate the least number. क्या क्या दे रखा था? 4, 5, 6. 4 given था, 5 given था, 6, and you need to calculate the least number. So just calculate the LCM. What will be the LCM? 2, 2, 5 and 2, 3. सो कितना एलसीएम आएगा? सब ले लो, 2 2 ज़ा 4, 20, 20 इंटू 6, 120। कॉमन कितना है? दिस 2 एंड दिस 2 कॉमन है, बचा क्या? 2, 5, 3। एक सेकेंड, लेट मी करेक्ट इट हियर। ठीक है, ये 2 तो कॉमन हो गया ना, लेफ्ट ओवर कितना हो गया? 5 2 3, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60। योर आंसर विल बी 60। सिंपली जस्ट टेक आउट द एलसीएम, दिस विल बी योर आंसर। Now how many lines can pass through 2 given points? ये 2 पॉइंट्स गिवन है आपको, कितनी लाइंस इनसे, हमें इन दोनों पॉइंट से लाइन पास करवानी है। ऐसे नहीं है कि एक लाइन ऐसे पास कर दो, एक लाइन नहीं, ओनली वन, क्योंकि एक ही तो लाइन पास हो सकती है किसी भी 2 पॉइंट से, सिर्फ एक ही। ये तो मैं जितना बड़ा सर्कल बनाती जाऊंगी उतनी लाइंस निकालूंगी? नो, इट्स जस्ट अ थिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, आप इसे सिर्फ एक ही तो लाइन पास कर सकते हो ना। अब आप और लाइंस ये बना सकते हो, ये ऐसे हो जाएगी, बट दैट लाइन विल नॉट पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, दैट लाइन विल पास थ्रू ओनली 1 पॉइंट।
सो दो गिवन पॉइंट्स के पार क्रॉस करेगी सिर्फ वन लाइन, सो योर आंसर हियर इज 1. Moving on to question number 192. Which of the following numbers do you get if you subtract -40 from -50? -50 से आपको -40 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. -50 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या? -40. ये बन जाएगा. योर आंसर विल बी -10. देखो ऑप्शन में आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा. यस, -10 विल बी योर आंसर. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 193. फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ. देखो, इफ यू हैव सीन दोज चिल्ड्रन or those students who have seen my previous videos, they know ki how much importance this question is holding, because I think in every video 1 or 2 questions I have explained which comes from this topic, the complementary angles and the supplementary angles. So just be very careful कि यहाँ से 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आएगा और एक सप्लीमेंट्री एंगल पे आएगा. यहाँ पर क्या है? फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? टेल मी, क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स? एंगल्स, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 193. बताओ कौन से होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स whose sum is equal to 180 डिग्रीज. यही तो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब यहाँ पे सपोज आपको A डिग्री का एक एंगल दे दिया, दूसरा है 55 डिग्री, राइट. सप्लीमेंट्री यानी कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180. ये हमें आज हिंट मिल गया सप्लीमेंट्री के नाम से. सो 180 माइनस 55 डिग्री, योर आंसर कम्स आउट टू बी 125 डिग्री. सो दिस विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री. व्हाट? 125. ठीक है. Moving on to question number 194. Express 0.045 as percentage. Okay. मैंने बताया था परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो एज परसेंटेज में करना है ना, मल्टीप्लाइड विद 100. परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 zeros मूव हो जाएंगी. व्हाट विल बी योर आंसर? 4.5%. और आप बोलोगे मैम पॉइंट तो रिमूव ही नहीं किया, यहाँ से पॉइंट रिमूव कर लो. क्या आएगा? 45 पॉइंट के बाद 3 जीरो है, 3 into 100. स्टिल योर आंसर कम्स आउट टू बी 4.5%. इज दैट ओके? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 4.5 विल बी योर आंसर. ठीक है. Question number 195. If one dozen notebook cost rupees 252 and the cost, find the cost of 10 notebooks. Okay. स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने? ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का. जस्ट अ मिनट. हाँ, ये लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से. हो गया स्क्रीनशॉट. ओके, सो आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 195. इफ वन डजन नोटबुक कॉस्ट रुपीज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स. ओके, कॉस्ट ऑफ 1 डजन, दैट इज 12 नोटबुक्स, है ना. 252 रुपीज है. ठीक है. तो 1 नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी? 252 अपॉन 12. आपको कितने की निकालनी है? 10 नोटबुक्स की. सो 10 नोटबुक्स कॉस्ट कितनी होगी? 252 अपॉन 12 इंटू 10. 2 5 6 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा 24 6 2 ज़ा 12 5 2 ज़ा 10 5 4 ज़ा 20 21.
210 रुपीज़ विल बी द आंसर। 10 नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी हुई? 210 रुपये। हियर इज योर ऑप्शन, मार्क दिस एज योर आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 196, फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन भी पक्का आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। क्वेश्चन नंबर 196, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, you need to calculate the greatest fraction. Okay, so what are the fractions given to you? 2/5, 5/6 और इस साइड दी हुई है आपको 11/12, 7/8। 11/12, 7/8। क्या बोला था मैंने? 5, 6, 12 और 8 का LCM ले लो, वो ज़्यादा ईजी होता है। हाईएस्ट नंबर इज 12, 12 2 ज़ा 24, 3 ज़ा 36, 60 आएगा, राइट? नहीं, 24 तो 5, 6, 12 एंड 8 है ना। नहीं, 8, 16 और 8 नहीं जाएगा क्योंकि 8 की टेबल में 60 नहीं आता। व्हाट विल बी द LCM? 120 आएगा इन दोनों का LCM। 120 इज द LCM। डिनोमिनेटर सेम हो गए। 15 8 ज़ा 120 होता है, 15 7 ज़ा 105, 12 10 ज़ा 110, 6 20 ज़ा 5 2 ज़ा 10 100 एंड 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 24 48। यू नीड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट। देखो किसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, इस वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, तो हमारी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कितनी होगी? 11/12 विल बी आर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। Our greatest fraction is this. Moving on to next question, how many 1/8 are there in 37.5? ऐसा ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। 197, there are x 1/8, तो x 1/8 37.5 बनाएंगे। x comes out to be 37.5 into 8, 60, 8 3 ज़ा 24 + 6 30, 300 1/8 होंगे। ओके, आंसर कम्स आउट टू बी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 25% ऑफ 25%। ठीक है, क्यों? जो क्वेश्चन में बोला है सिर्फ वही लिखो। 25% ऑफ 25% बोला है। (25% means this, of means multiply 25% this, so what will be getting? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 अपॉन 4 zeros। सो हमारी फ्रैक्शन ये आई है। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? पॉइंट के बाद कितनी जीरो, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स होनी चाहिए? 4, बिकॉज वी हैव 4 zeros इन द डिनोमिनेटर। so your answer is 0.0625 here, 0625. Okay, moving on to question number 199. Find the HCF of 11341344. ठीक है, क्वेश्चन 199, HCF निकालना है हमें किस किस का? 1134 एंड 1344 एंड 1638, 1638, 1638। LCM निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले वी नीड टू कैलकुलेट द फैक्टर्स। सो फैक्टर्स कम्स आउट टू बी 2 power 1, 3 power 4, 10 power 1। नेक्स्ट अगर हम करें तो इसके फैक्टर्स आएंगे 2 power 6, 3 power 1, 7 power 1 एंड
1638 के फैक्टर्स आएंगे 2 पावर 1, 3 पावर 2, 7 पावर 1 एंड 13 पावर 1। HCF लेने के लिए हम क्या लेते हैं, जो तीनों में कॉमन होता है उसकी लीस्ट पावर। 2 2 2 तीनों में कॉमन है, लीस्ट पावर इज 1। 3 3 3 तीनों में कॉमन है, लीस्ट पावर इज 1। 7 तीनों में कॉमन, लीस्ट पावर इज 1। 42 will be your answer. Okay, so your answer is 42. Moving on to next, find the value of 3745 into 65 plus 3745 into 35. This question is important. ये question आप लोग look at the question first. 3745 into 645, 65, then there is plus, then you have 3745 into 35. ठीक है। अच्छा, अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करने लग गए तो यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम, जो कि हमें नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लुक एट 65 एंड 35। 65 और 35 को हम ऐड करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग 100। ओके, अब या तो आप 65 को 100 की टर्म्स में चेंज 35 की टर्म्स में चेंज कर लो, या फिर 35 को 65 की टर्म्स में चेंज कर लो। सो मैं 65 को 35 टर्म्स में चेंज करूँगी। कैसे, 3745 था, इनटू मतलब मल्टीप्लाई। क्या मैं लिख सकती हूँ 65 को 100 माइनस 35, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे ये देखा है ना, तो मैं लिख सकती हूँ इसको। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इंटू 35, राइट। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 37450, राइट, माइनस 3745 इंटू 35, राइट, प्लस 3745 इंटू 35, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। सपोज इनको मल्टीप्लाई करके -5000 आया, तो यहाँ पे -5000, यहाँ पे +5000, माइनस प्लस कैंसिल आउट, दैट मीन्स हमारा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। व्हाट यू आर लेफ्ट विद, यू आर लेफ्ट विद 374500, विच इज योर आंसर। इतने बड़े मल्टीप्लीकेशन नहीं देखते हैं, पहले इन दोनों की रिलेशन देखते हैं कि व्हाट वुड बी द रिलेशन दैट वी पीपल कैन एस्टेब्लिश बिटवीन द नंबर्स गिवन। ठीक है, नेक्स्ट, सो दिस वाज योर टुडेज क्लास. Again, to remind all of you, if you really want to prepare hard for your exam, do join this batch. Or the name of the batch is Target RMC RMS to 2022 Champions Batch. Enroll it today itself in order to get better experience and to prepare well for the exam. Also, if you have not subscribed the channel, go kindly subscribe Geometry School channel, hit the like button, hit the bell icon so that you can get all the important notifications. Also share the video with maximum number of friends so that they can also have a brief idea about what the question is about and what the examiner wants to ask. Also, Geometry School is going to start offline coaching with hostel facilities. So all those who are interested for offline coaching, they can visit the Geometry School website to know more about the facilities and all the what you'll be getting in your batches. Till then, keep practicing, keep enjoying, don't try to skip any video, because what I am teaching you is your previous year papers. So you'll be having a brief idea about what you'll be getting in the exam. Till then, keep watching the classes, visit regularly, protect yourself, stay blessed, stay happy. Wait for the next video. Thank you.